आज 15 अक्टूबर 2025 ब्रिज नंबर 85 कुंडा सिंगल लाइन का ब्लॉक है, जिसमें ब्रिज में कई सारी छोटी छोटी प्लेट्स, पतली पतली प्लेट्स डालनी है लेवल करेक्ट करने के लिए। अलाइनमेंट भी चलेगा। मेन काम ब्रिज में ही होना है एक्चुअली, अप्रोच स्लीपर्स में ज़्यादा काम नहीं है। और वीडियो जो बनेगा बना रहा हूँ मैं, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है मेरे पास। जो भी मैं बना पाऊँगा वो बनाऊँगा, बिकॉज मैं खुद भी ब्लॉग में इन्वॉल्व रहूँगा। तो ब्लॉग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, वीडियो मेकिंग इज़ सेकेंड प्रायोरिटी। अभी यहाँ 20 का क्वेश्चन लगाया हुआ है ब्लॉग से पहले, प्री ब्लॉग की प्रिपरेशन के लिए। ये अबटमेंट A2 है, जिसको राइट साइड में 9 mm चलाना था, जो चला दिया इन्होंने इधर से दाब लगा करके। और ये इन्होंने लिखा है 9 mm, और नीचे आप देखोगे हल्का सा गाइड स्ट्रिप को इन्होंने ट्रिम किया है, वही करीब 9 mm चलाने के हिसाब से। बाद में गाइड स्ट्रिप को भी बदलेंगे, अभी फिलहाल चलाया है। So friends, this is another recording on bridge number 85, which is between Fafamau and Uchahar. What has happened was an alignment correction was done, level correction was not done actually, because we had only 90-minute block. So we were apprehensive that that block might burst. So we only went for alignment correction. This is bridge 85 here, and this is Prayagraj, this is Uchahar. Now, just after the execution of the work, I had taken readings. The purpose was that since we already have the level data, which we have not yet executed, but let's take a new data, take a fresh data. We might get slightly different values for level correction, number one, and number two, we can also ascertain mathematically or in AutoCAD if the alignment correction has already been achieved. Although visibly speaking, the correction was very good. This is the left rail and this is the right rail. Now so we have this SDR file from Total Station. First we have to convert this SDR file into DXF file. So we will use this website. We will choose file. So this is we may change the date. Actually this date was 15th October 25. So now it will convert this SDR file into DXF file. DXF file can be opened in AutoCAD, and we really don't know what we are going to get. So we will make a fresh report. Actually it's like post work. Downloaded the DXF file. Now let's also convert this file into Excel. So we have Excel file also. Now this was the last analysis. So
this is the level correction that we could not do actually. Hopefully again in this data we will get something similar. And there are four types of alignment analysis. This time we will do the single type. So what we can do, we can copy this actually. And rename it Base 85 15 October 25. Alright, so this is the level data. So this is the old data, we will delete it and we will transfer the new data in this one. Move or copy, create a copy. Alright, next is sheet 2 and sheet 3. So here in this data is old data, then this is also old data, this is also old data, so we will delete it. This is also old. This was a viable solution, this was an ideal solution. So this time also we will go for both, one for viable, one for ideal. And let's first put all the level data, because there is no error in the level data actually. So actually I should delete it. Let us delete it. पूरा नहीं delete कर रहे हैं because फिर से दोबारा edit भी करना है actually. Okay, no need to compare. We will consider this new data as the actual data. So what we will do, we will first fill these datas. So we will open the DXF file in AutoCAD and then we will proceed. So here is the DFX data. A2, S2, E2. It is basically 3 span data that we have. So actually it was another file. So now I have opened the correct file. This is this one. This is the wrong file. I am going to delete this one, and this is the correct file. Now what we have to do, let's also open the Excel file. We already have this here. So what had happened that Vande Bharat had come in between survey, and last few points
that we had taken. This is also the incorrect one actually. Delete it. So now we have the correct file here. 15 अक्टूबर 2025 सर्वे पोस्ट ब्लॉक यानी ब्लॉक के बाद का सर्वे. इसमें क्या था दैट आई वांट टू टेल, जिसको मेरे को ध्यान में रखना है हमको. P10, P20, P30 जो लास्ट की हमारी वैल्यूज हैं. P मतलब प्लस, प्लस मतलब ब्रिज के आगे अपवर्ड पीआरसी स्लीपर की बात हो रही है. P R, ये जो R की चार वैल्यूज हैं ये वंदे भारत निकल जाने के बाद हमने ली हैं, और उसके जो पीछे की वैल्यूज हैं वो उसके पहले के लिए हैं. इट मे सो हैपन दैट हमारा टोटल स्टेशन थोड़ा सा हिल गया हो, जिसकी वजह से इन वैल्यूज का लेवल पे तो मैं रिलाई करूंगा, बिकॉज टोटल स्टेशन अगर हिल जाता है तो लेवल का जो डाटा है उस पे उसमें गलती नहीं होती है, लेकिन एक्स वाई ऑर्डिनेट के डाटा में गलती हो जाती है. इस बात का हम ध्यान रखेंगे. बाकी एनालिसिस के टाइम पता चलेगा कि क्या स्टेटस है एक्चुअली. सो नाउ वी बिगिन आवर एनालिसिस. पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो डाटा सही है, बिकॉज स्पीड बहुत स्लो थी वंदे भारत की, स्टॉप डेट पे निकली थी, तो प्रोबेबली कोई इशू नहीं रहा होगा. एंड हमने जो डाटा लिया है गर्डर के ऊपर, जो डाटा लिया है वो स्ट्रिंजर के टॉप का लिया है, न कि रेलवे, न कि रेल के ऊपर का. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्रिज के बाहर रेल के ऊपर का डाटा लिया है. तो पहले तो हम क्या करेंगे कि सबका सेंटरिंग बनाएंगे. सो इट्स रिपीटेटिव टास्क. हम इस सबका सेंटरिंग बना लेते हैं. और अभी मैं रिज्यूम कर रहे हैं कि जो राइट का डाटा हमने लिया था बाद में वो सही था. लास्ट में हमने राइट का डाटा लिया था. यस, लेट मी सी, राइट का डाटा लिया था लास्ट. ये लास्ट 10 डाटा जो है वंदे भारत निकलने के बाद लिया गया था. सो या तो हम ऐसा करें, लेफ्ट का अलग निकालें, राइट का अलग निकालें, बाद में उसकी एवरेजिंग कर दें. दैट वुड बी बेटर एक्चुअली. हाँ, दैट वुड बी बेटर. सो हम क्या करते हैं, P40 को ज्वाइन, बट अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये हो नहीं पाएगा, बिकॉज यहां तक प्लस में तो हमने रेल के ऊपर का डाटा लिया है, यहां जाके हमने स्ट्रिंजर का डाटा लिया है, तो हमें सेंटर तो बनाना ही पड़ेगा. सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन. हमें सेंटर बनाना पड़ेगा, ट्रैक सेंटर एंड गर्डर सेंटर. सो अब ये रिपीटेटिव टास्क है. Sometimes it does not catch despite it being on. So now we are at P10. So 10th PRC sleeper, 20th PRC sleeper, 30th PRC sleeper, 40th PRC sleeper, these we have covered. Now we are on third span, forward side, up side.
So now we are on third span upside, then third span downside. डाउनसाइड को R1 L1, राइट का पहला, लेफ्ट का पहला, पहला मतलब कि डाउनसाइड की तरफ वाला। ओके, तो ये हमारा गर्डर का सेंटर आ रहा है बेसिकली। हम गर्डर के सेंटर के हिसाब से ही एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। So गर्डर सेंटर will be matched with PRC sleeper center. Now if you notice something, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। So one will wonder कि इसमें से जो डाटा लिया है हमने ये एग्जैक्टली 90 डिग्री वाले पॉइंट का नहीं उठाया, बट इट डज नॉट मैटर एक्चुअली, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइट कि आप डाटा दोनों तरफ का आगे पीछे लो, सेंटर आपका सेंटर पे ही आता है, आएगा। नेक्स्ट S2R1, दैट मीन्स सेकेंड स्पैन का डाउनवर्ड साइड। नेक्स्ट इसका सेंटर, नाउ वी गॉट गर्डर सेंटर। नेक्स्ट कंट्रोल वाई से प्रीवियस कमांड को रिपीट भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा फास्ट मेरे को इससे मिल जाता है इसके, बिकॉज मेरा मेरा लेफ्ट हैंड की एक उंगली एस्केप बटन पे रखी हुई है, तो उसको उठा करके कंट्रोल वाई दबाना पड़ेगा, तो मेरा मतलब मेरा हाथ का पोजीशन गड़बड़ा जाएगा बार बार। तो उसको मैंने एस्केप पे रखा हुआ है, एक लाइन में खींचता हूँ फिर एस्केप दबाता हूँ। So I have joined all the left and right points, selected the center also. There are up to M40 minus 40 PRC downside में and up to 40 PRC upside में. Now what we will do? We will change the color and we will join the centers. Alignment supposedly बहुत अच्छा आना चाहिए, it should come very good because this data is after execution of the work. So let's open our Excel file, and this is about Kant, this is about Siu at railhead level, and basically bearing level. What is actually happening is required slew. अब इसमें जहाँ PRC स्लीपर है वहाँ पे तो PRC स्लीपर का स्लूइंग होगा, और जहाँ पे गर्डर है वहाँ पे गर्डर का स्लूइंग होगा। इसलिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड स्लू ईदर ऑफ PRC स्लीपर और ऑफ गर्डर। ठीक, नाउ हम M40 तक गए हैं, तो इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, एंड this delete likewise. P5 P15 delete, एंड यहाँ पे P30 P40 when P40 and M40 are chosen as good points. इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। Extra lift at approaches, well, let's keep this data. Now
यहाँ पे हमारे पास डाटा आएगा और ये जो है ये गर्डर के स्प्लिंग के करस्पॉन्डिंग है। तो लेट अस गिव सम अदर कलर। ऑलराइट, या ऐसा कुछ करते हैं, और ऑफ गर्डर को ग्रीन कर देते हैं, या डीप येलो, डीप रेड, एंड इसको हाईलाइट, and this also, and this is a good point. Now what is going to happen here is इसको हम रेडिश कर देते हैं। राइट, सो कलर कोडिंग हमने इस हिसाब से करी कि कहाँ पे गार्डर का स्विंग है, कहाँ पे या फिर स्लीपर का स्विंग है। सो नाउ वी गो टू दिस। सो P40 M40 को गुड पॉइंट माना है। अब ये हमारा S3R2, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एबर्टमेंट A2। ये क्या पोजीशन पे आ रहा है, लेट्स से जब हम विजिबली देख रहे हैं, और ये विजिबली जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली एबर्टमेंट A1 के बाहर से लिया गया है, तो और ये एबर्टमेंट A2 काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो लेट अस सी कि डाटा क्या कहता है। सो डाटा, व्हाट डज डाटा से? सो डाटा इज like this. So now we are इसमें हमें इसका वो भी चेंज करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट, dim style, dim style, modify decimal, okay, close, next. It is not accepting perpendicular. Anyway, जो nearest है specify extension node, what if I delete it and then I go here. So we are taking an approximate value. We are not able to get 90 degree. Somehow software is not responding. Okay, approximately 90 degrees I am taking. So this value is also 11 mm. So both these are 11 mm to the right. So okay, let us see. Both are 11 mm to right, and this is with respect to girder actually. So actually we have to fill this data. Yes.
we have to fill this data. M40, 30, 10, next 5, 15, next 30 and next 40. So abutment A2 पे हमारा डाटा है and this is the column that we need to fill, and we will compute from here. Control C, Control V. नेक्स्ट अब इसको डिलीट कर देते हैं। जब पहले क्या था हमने इसके हिसाब से काम किया था, और लेट अस डिलीट दीज, इसकी जरूरत नहीं है। वी हैड डन वर्क अकॉर्डिंग टू दीज। आई हैड मेड मेनी करेक्शंस इन ऑल दीज वैल्यूज। Number one, because there are slight changes in the thickness of the plates that are required, and there were some other small errors in the editing. So I will brief what I have done actually here. Number one thing, I have separately written here span 2 के नीचे क्या चाहिए प्लेट, span 1 के नीचे क्या चाहिए, span 3 के नीचे क्या चाहिए। इनफैक्ट इसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, इसको ऊपर ले आ सकते हैं, 3 1 2 3 के हिसाब से हो जाएगा। नाउ कुछ सेपरेट क्यों कर रहे हैं? सेपरेट इसलिए कर रहे हैं because span 1 and span 3 are of shorter length and have a different type of bed plate which will require different cross section of the plates, thin plates जो insert करना है, and also different cross section of the guide strips and locking strips जो उसको सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए लगाना होगा। इसलिए ये 3 पार्ट में हमें इसको लिखना जरूरी है, तभी हम सही एनालाइज कर पाएंगे। नाउ ये जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे स्पैन 1 के नीचे हम प्लेट डाल रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन मेरे को 240 × 400 रखनी है। ये कहाँ से आया? थिकनेस तो हमने जो है टोटल स्टेशन डाटा से उठा लिया एनालिसिस करके, ग्राफ बना करके। ये कहाँ से आया? तो ये आया बेसिकली जो हमने डायग्राम बनाया है स्पैन 1 एंड 3 का एक जैसा है, जिसमें बेसिकली हमने अवेलेबल स्पेस जो टॉप ऑफ बेड प्लेट पे है और एग्जिस्टिंग गाइड स्ट्रिप जहाँ पे है, एक्चुअली एग्जिस्टिंग गाइड स्ट्रिप का ये सारा डायमेंशन लिखा हुआ है, उसी डायमेंशन के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। लॉकिंग स्ट्रिप और गाइड स्ट्रिप के बीच में जो जगह बच रही है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम जा सकते हैं राइट साइड में और ऊपर की साइड में, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, जो कि यहाँ पे 400 × 220 हमें लिखा है एट द मोमेंट ऑफ सर्वे, या जब भी हम एनालिसिस कर रहे थे। तो अभी इसमें हमने वर्ड में क्या लिखा है? हमने 240 × 400 लिखा है, रादर 400 × 240 लिखना चाहिए। जनरल डायमेंशंस में जो हायर वैल्यू होती है उसको पहले लिखा जाता है, और 220 लिखा है तो 220 ही रहने देते हैं, 240 नहीं करते हैं, नो नीड टू गो फॉर एक्स्ट्रा। और वी में वो है स्लाइटली एक्स्ट्रा बिकॉज बिल्डिंग में थोड़ा हेल्प मिल जाती है उससे। 220 की जगह पे 240 का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहे हैं along the track। ये मेजरमेंट हमने यहाँ से इस कॉर्नर से ये वाली मेजर करी है, दिखाया तो करिए यहीं से है, बट मेजरमेंट इसका थोड़ा इसके काफी पास से है। एनीवे, नेक्स्ट इज स्पैन 2। अब स्पैन 2 का क्या है? बेड प्लेट अलग साइज का है, अलग डायमेंशन का है, ये इस टाइप का है, ये बड़ा सा है, और ये मेरी प्लेट है जो मेरे को इंसर्ट करनी है, और ये हमने डिटरमाइन किया कि 460 × 300 की होनी चाहिए। वो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी 460 × 300। इसको भी सही कर देता हूँ, 460 × 300 mm और स्पैन 2 और हटाइए इसको। नेक्स्ट स्पैन 3 में भी वही हमारा क्रॉस सेक्शन रहेगा 400 × 240, 400 × 240 mm। थिकनेस हमारी वही एनालिसिस से आई होगी। अब आते हैं गाइड स्ट्रिप पे।
तो गाइड स्ट्रिप में जो स्पैन 1 है और जो स्पैन 3 है, उसमें गाइड स्ट्रिप का हमने डिटरमाइन किया है क्रॉस सेक्शन, वो 165 × 85 है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 165 × 85, 165 × 85। और जो थिकनेस हमने आइडेंटिफाई करी है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करी है कि जो प्लेट हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके ओवर एंड अबव 16 mm या मोर देन 16 mm होना चाहिए। उसी के हिसाब से स्पैन 1 का, स्पैन 2 का, स्पैन 3 का सबका जो है थिकनेस ऑफ गाइड स्ट्रिप डिटरमाइन किया गया है। उसी प्रकार थिकनेस ऑफ लॉक स्ट्रिप डिटरमाइन किया गया जो एक्जैक्टली सेम आएगा, एक्चुअली जस्ट क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा। तो एक बार क्रॉस सेक्शन भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले गाइड स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन क्रॉस चेक कर लेते हैं। 300 × 90 आ रहा है स्पैन 2 का। लेट अस सी की फिगर में क्या है। स्पैन 2 का गाइड स्ट्रिप ये रहा 300 × 90, दैट इज करेक्ट। अब स्पैन 2 का ही लॉकिंग स्ट्रिप हमारा है 460 × 85। सो 460 × 85 ये रहा स्पैन 2 का लॉकिंग स्ट्रिप, और बाकी 360 × 85 और 360 × 85 ये हमारा गाइड स्ट्रिप है। तो ये हमारा गाइड स्ट्रिप है स्पैन 1 और 3 का, सॉरी लॉकिंग स्ट्रिप है। लॉकिंग स्ट्रिप बात करें 360 × 85। ये हमारी वैल्यू सही हो गई। कुछ करेक्शन मैंने अभी भी किए ड्यूरिंग एडिट। इसके बाद जो चीज़ मैं शो नहीं कर पाया था बट उसको मैं दोबारा क्विकली शो कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। ये 29 अगस्त का स्टेटस है। अगर इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन करूँ, ये 29 अगस्त का स्टेटस है। ऑलराइट, बहुत साफ साफ दिख रहा है, काफ़ी सारे अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। और ये 15 अक्टूबर का है ब्लॉक होने के बाद, और ये लेफ्ट रेल की बात कर रहा है। उसी प्रकार ये राइट रेल की बात कर रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो हमारे पास आ गई। ऑलरेडी हमने टेबल हमने नहीं डाला इसमें हमें टेबल भी इंसर्ट करना है। कौन सा टेबल? ये वाला टेबल, यहाँ से सारी बातें हम तय हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल सी। बिफोर दैट थोड़ा सा इसको कम किया जाए, तो इसकी विड्थ इक्वल्स टू राइट लेफ्ट। हमारी मिसलिंग का काम करना नहीं है कोई, बट ठीक है, डाटा हमने रखा है तो वी विल कीप इट। ये सब बस थोड़ी थिकनेस हम मैनेज कर ले रहे हैं कि हमारा स्पेसिंग जो है थोड़ा अच्छा हो जाए, विड्थ हमारी कम लगे। वायबल सोल्यूशन हमें करना नहीं इम्प्लीमेंट, हालांकि डाला हुआ है। पुराना सोल्यूशन हमें करना नहीं है लेकिन फिर भी डाला हुआ है, या तो इसको हटा ही दिया जाए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको हटा देते हैं। राइट, अब हमारा अच्छी खासी प्रॉपर भी था गई। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वायबल सोल्यूशन भी हमें करना नहीं है लेकिन रहने देते हैं क्योंकि लेटेस्ट डाटा है। हो सकता है सीनियर सजेस्ट करें कि वायबल सोल्यूशन को ही करो, बिकॉज इसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ प्लेट्स कम। कितनी कम? इस वाले में हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स, जितनी नंबर ऑफ प्लेट होंगी उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेट्स हैं, और 9 दूनी 18। 9 प्लेट, 9 गाइड स्ट्रिप, 9 लॉकिंग स्ट्रिप। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 36 18, तो 2/3 काम है इसमें बेसिकली। मेन अंतर तो यही है फिलहाल, बट अगेन ये आइडियल है, सो शुड गो फॉर आइडियल एक्चुअली। कंट्रोल सी। So we will copy it as an image actually, otherwise formatting सारी गड़बड़ कर देता है ये। rather than paste as image. Alright, and ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला गया है। Alright, ये आखिरी में जो कॉपी टूल्स को उठाते हैं ले आते हैं ऊपर सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज ये राइट। अब कॉपी टू करना है, थोड़ा सा रिपोर्ट को और अच्छा शो ऑफ करना है। अगर आपको लेट्स से शो ऑफ करना कहो या जो भी कहो, क्योंकि हमने ऑटोकैड में ये काम किया है, ये सारा वैल्यू हमें दिख रहा है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हैं। और
देते हैं, इसमें सिर्फ ऊपर नीचे क्रॉप हटा देते हैं, सिर्फ वैल्यूज हमारी शो करेगा, ऐसे रहने देते हैं। थोड़ी देर भी कम कर देते हैं। ये यहाँ डाल दिया, अब ये हो गया, यहाँ साइन मार दिया, यहाँ साइन इंसर्ट कर देते हैं। सो साइन इंसर्ट कर दिया हमने, कॉपी टू कर दिया, इसमें कॉपी टू सीरियल इंसर्ट भी करना पड़ेगा। डेट हमने डाल रखी है, नहीं डेट अभी बदला नहीं, डेट को बदलना पड़ेगा, ये 15 तारीख की डेट का है। रिपोर्ट की डेट हम वही रख रहे हैं जिस डेट को सर्वे हुआ है, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर एक्चुअली, वही ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, इन द ट्रैफिक ब्लॉक ऑन 15/10/2025 memory alignment corrections were targeted while level corrections were postponed for later due to ब्लॉक छोटा था ना हमारा, तो ड्यू टू शॉर्ट ब्लॉक, ड्यू टू शॉर्ट ब्लॉक टाइम, short period of traffic block. While a very good track level alignment has been achieved throughout लिख रहे हैं क्योंकि which means bridge proper और bridge approach दोनों को मिला करके हम बात कर रहे हैं, that means bridge approaches and bridge proper now have very good alignment. In future level should also be corrected in planned manner, मतलब हमारे पास अर्जेंसी नहीं है लेकिन प्लानिंग करके आप इसको लेवल को भी सही कर लीजिए। राइट, ठीक है, तो हमने सारी बातें लिख दी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको कर लिया। राइट, I think this is fine. Now we can save it, Ctrl S, export it, साइन कर ही दिया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पचासी में ही सेव हुआ होगा, दिस इज alright. So I think we are done here. I will pause the recording here.